Hello students, today we are going to learn a poem Leisure. It is written by W.H. Davis and this poem is about a very good thought about the beautiful nature which is existed in our surrounding, but we don't pay a specific attention towards it. So look at the first two lines of this poem, or we can say first stanza of the poem. It is written over there, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. Here poet want to say that we are living our life with full of care. We do a lot of care of our family, our relatives, our friends and ourselves. We are worried about our life. We take more tensions than what is actually required. And because of this, what happens? We do not spend our time to watch our beautiful nature. We all miss this beauty just because of our tensions and worries. इसका मतलब ये पोएट जो है यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं. हमारी चिंता, हमारे परिवार की चिंता, हमारे रिश्तेदारों की चिंता, खुद की चिंता, इतनी सारी चिंता करते हैं, इतना सारा हम लोग ख्याल करते रहते हैं एक दूसरे का कि हमें हमारे ही इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में जो एक बहुत बड़ी अच्छी सुंदर प्रकृति है, नेचर है, उसका आनंद उठाने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है. Now we will go ahead for next lines. In next lines it is written, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. Here poet says that because of our tensions and worries, we don't have time to stand under the branches of trees and stare at the sky and beautiful scenery just like the sheep and cows do. मतलब हमारे पास उतना भी समय नहीं है कि हम लोग किसी पेड़ के टहनियों के नीचे खड़े रहे, मतलब किसी पेड़ के नीचे खड़े रहे, उसकी ठंडी हवा ले, थोड़ी देर के लिए रुके और जिस तरीके से कोई शिप या काऊ पेड़ के नीचे रुककर आजू बाजू की प्रकृति का आनंद उठाते हैं, वैसे हम आनंद उठाए. हमारे पास उतना वक्त नहीं है. यहाँ दो वर्ड आए हुए हैं. बेनिथ मतलब अंडर, के नीचे, पेड़ के नीचे, यहाँ उनको कहना है. एंड बाउज, ये जो यहाँ पे वर्ड है, इसका मीनिंग भी बाजू में दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ के जो टहनियां हैं, ब्रांचेस है, इसको बाउज ऐसा बोलते हैं. तो हम कम से कम उतना तो वक्त निकाल पाए हमारे जिंदगी में. हमने कम से कम इतना निकालना चाहिए वक्त कि हम लोग जिस तरह से शीप, काउस और बाकी के भी अलग अलग एनिमल्स पेड़ के नीचे खड़े रह के थोड़ा वक्त बिताते हैं इस नेचर की ब्यूटी देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, उतना वक्त हमने निकालना चाहिए. Now we will learn the next lines. It is written that no time to see when we pass where squirrels hide their nuts in grass. I repeat, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts and grass. Poet says, apart from above things, what we have seen in above 4 lines, even when we pass through a forest, we don't look some amazing places.
like a place where squirrels hide their nuts in the grass. Squirrels मतलब गिलहरी, आपको पता है ये जो गिलहरियां है ये भी कभी कभी जंगल में रहते हुए घास फूस में अपना खाना या खाने की जो चीजें है वो वहां पे छुपाती है। कैसे वो छुपाती है, कैसे यहाँ वहाँ घूमती है, ऐसी सारी चीजें देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम जब जंगल से घूमेंगे, वुड्स मतलब जंगल, When woods we pass मतलब जंगल में से हम जब गुजरते हैं, वहां से जाते हैं, तो हमें ये छोटी मोटी चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो नजर आती है, लेकिन हम ध्यान से देखते ही नहीं हैं। हम हमारे ही काम में इतने मशगूल होते हैं, बिजी होते हैं कि हमें आजू बाजू के इन खूबसूरत चीजों को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। तो पोएट यहाँ पे यही कहना चाहता है कि ऐसी खूबसूरत बातें भी हमने ऑब्जर्व करनी चाहिए, देखनी चाहिए। Now look at what he says in next lines. He says, no time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. So in these lines also poet says that we don't have time to see the sparkling effect which sunshine produces. How it happens? When its light falls on the streams of water, it seems like there are number of stars in the water, just like the stars sparkling in the sky at night. जिस तरह हम लोग रात को आकाश में बहुत सारे तारों को चमकते हुए देखते हैं और हमें बड़ी खुशी मिलती है, बस उसी तरीके से दिन में भी ऐसी खुशी को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कैसे? पानी का बहाव जो होता है, पानी की जो धारा बहती है, फिर वो नदी हो या कोई झरना हो या समंदर हो, उसमें जब आकाश में तपने वाले सूरज की किरणें गिरती है तो उन किरणों की वजह से पानी चमकता है। जिस तरह से आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे वहां पर भी स्पार्कलिंग इफेक्ट हमें नजर आता है। पानी में जिस तरीके से चांदनी या सितारे चमक रहे हैं, ऐसा हमें आभास होने लगता है। वो जो दृश्य होता है वो भी बड़ा खुशी भरा होता है और हमारे मन को प्रसन्न करने वाला होता है, लेकिन हमारा ध्यान ऐसी चीजों पर भी नहीं जाता। यही यहाँ पे पोएट हमें बार बार कहना चाहता है। Now we will see what poet want to say in next lines. It is written that no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. Here poet consider the environment or the nature as a beautiful girl, but even then, as per him, we don't have enough time to look at her beauty. The world is full of magical moments, and the nature usually in its full youth when it dances very gracefully as the various seasons turn up one by one, or the day changes to night and night changes to day. मतलब यहाँ कहना ये है कि ये जो प्रकृति है, ये नेचर है, ये एक सुंदर लड़की की तरह है, सुंदर युवती की तरह है, फिर भी हम इस नेचर को देख नहीं रहे। हमारे पास उतना भी वक्त नहीं है कि हम इसकी सुंदरता को देखें, उसका आनंद उठाए। ये एक सुंदर युवती जैसे नृत्य करती है, डांस करती है और अलग अलग मोमेंट्स दिखाती है, वैसे ये नेचर भी अपनी अलग अलग गतियां, अलग अलग विधाएं दिखाता है। वो कभी
मौसम चेंज करता है, रात का दिन और दिन का रात होते जाता है, और ये सारी गतिविधियों में एक खूबसूरती छिपी हुई होती है जिस खूबसूरती को हम लोग नहीं देखते। हमें वो खूबसूरती देखने के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, या फिर हम लोग वक्त ही निकाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा पोएट यहाँ पर कहना चाहता है। In next lines, what he says, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. It means here, continuing with the thought that considering nature as a beautiful girl, what he want to say that due to our busy lives, we have no time to watch it dance rhythmically or see a beautiful smile that spreads from her mouth and end in her eyes. It means यहाँ हमें इतना भी वक्त नहीं है कि ये जो नेचर एक सुंदर लड़की की तरह है, सुंदर युवती की तरह है, जो इतनी अच्छी खूबसूरत स्माइल देता है, बड़ी अच्छी मुस्कान दे रहा है, जो उसके सूरत से, उसके ओठों से स्टार्ट होकर शुरू होकर उसकी आंखों तक खत्म हो जाती है। इतनी सुंदर स्माइल जो वो एक तरीके से हमें दे रहा है, मुस्कान दे रहा है, वो मुस्कान देखने के लिए भी क्या हमारे पास वक्त नहीं है? आखिरी लाइन में वो क्या कहते हैं? A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. If you will see, the first stanza is also like this. In first stanza, what he told us or asked us, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. And in last line, he's saying, a poor life this if full of care. It means he wanted to say that if you are spending your whole life with full of care only, then your life is becoming very poor and you are not enjoying it as you should enjoy it. We have no time to stand and stare. In this last couplet, the poet really feels pity for all those who are a part of the nature, yet apart from it because they have no time to wait and watch the miraculous changes of nature. आखिरी इस 2-4 लाइनों में जो पोएट कहना चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वो कहते हैं कि सचमुच अगर हम लोग ऐसे ही वक्त बिताने वाले हैं, हमारी चिंता करते हुए, दूसरों की चिंता करते हुए, हमारे परिवार की चिंता करते हुए, तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन जो बेचारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेचारा बन जाएगा। हमारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं है कि कहीं थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके, थोड़ी देर के लिए इस जिंदगी का आनंद उठाए, थोड़ी देर के लिए हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, ये जो नेचर है, उसकी सुंदरता देखे, उसकी सुंदरता की तारीफ करे। क्या हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो हमारी लाइफ बेचारगी वाली लाइफ बन जाएगी, बहुत ही पुअर लाइफ है, खराब लाइफ है। हमने इस नेचर का आनंद उठाना चाहिए। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज we should enjoy the beauty of nature and we should have a little time in our life to watch this beauty. We should not always engage in our busy schedule. Okay, we should not take so much of tensions. We should not be worried all the time. We should watch the beauty of nature also, so that you can live your life happily. So this is all with this poem. I hope you must have understood the whole meaning of this poem. Thank you.